This episode is the very first question and answer episode of this channel, and thank you so much for asking great questions. And if this question and answer episode gets a great response from you guys, then I will continue this series in future as well. So if you like this episode and अगर आपको चाहिए कि ये series आगे भी continue हो, तो please do like this episode and let me know in the comment section below. So without any further delay, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and the first and majorly asked question is what is your portfolio and how much stocks you are owning in your portfolio. And I know this video is pending, but right now my portfolio is a bit in restructuring, and जब ये restructuring done हो जाएगी, I will surely share my portfolio with you guys through an episode. So please थोड़ा और ज़्यादा wait कर लो guys, because I will surely come up with a portfolio video very soon on this channel. The second most frequently asked question is how to learn about the stock market and how to gain knowledge about the stock market. And for this, I think so an investor must learn how to read numbers in the financial reports. Profit and loss statement को कैसे रीड करते हैं, बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, कैश फ्लो में जो नंबर्स रहते हैं उनको एनालाइज कैसे करते हैं, और उनको एनालाइज करके एक कंक्लूजन पे कैसे आया जाता है, ये चीज आपको जानना एज एन इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. एंड फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये एपिसोड मेरा जरूर चेकआउट करना चाहिए, जहाँ पे मैंने बेसिक से समझाया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करना है, तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको रीड करनी चाहिए, कहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए, एंड एवरीथिंग एल्स. सो प्लीज डू वॉच दीज एपिसोड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहन कोल्हे, वेयर ही इज आस्किंग व्हाट आर योर थॉट्स एंड प्लान ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड हाउ यू कैन अचीव इट. एंड आई थिंक सो हैविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग you can achieve, because having control over your time is the greatest thing money can buy. How you want to spend your time, by doing what you want to spend your time and with whom you want to spend your time, is the most important thing money can buy, and you can achieve these things by having financial independence. And how you can achieve it, I think so by saving as much as you can and by investing your money systematically, prudently and with discipline in the stock market or in any asset class which can give you higher return over a longer period of time. And if you follow this process consistently with discipline for minimum 2 decades, I think so you can achieve financial independence. The next question is from Ashish Ingle, where he is asking how to start your first investment at the age of 20. Index fund bro, index fund is great if you are know nothing investor and if you want to start your investment journey. जैसे जैसे आपका पैसा जाने लगेगा मार्केट में, वैसे वैसे आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा और आप अपने आप नॉलेज बढ़ाने लगोगे स्टॉक मार्केट के बारे में. The next question is from Renil D'Souza, where he is asking how many stocks you have in your portfolio. Right now I am holding 10 companies. Among them I think 5 are large cap, 2 are mid cap, and remaining are small cap. The next question is from Profile Rudra, where he is asking which is the best Demat account. I don't know which is the best one, but I personally use Zerodha and Upstocks and I have no complaints with them. And another thing he is asking how to start investing, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. The next question is from Prakhar Sethia, where he is asking will market crash in upcoming days because it is at peak now, but many people have huge funds. Bro, no one can predict the market and that is why be with the market on ups and down. अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड है तो आई वुड सजेस्ट कि 30 to 40% अभी डिप्लॉय कर लो, एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो सिस्टमेटिकली स्टेगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करते जाओ, बिकॉज नो वन नोज मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाते रहा तो आप ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे. एंड दैट इज वाई इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली. अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड है देन पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दो और रिमेनिंग अमाउंट स्टेगर्ड फॉर्म में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते जाओ, बिकॉज मार्केट कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर then you can remain solvent. The next question is from TS Sahani, where he is asking how much percentage of money should go in crypto if I only want to invest in stocks and crypto. I think जितना पैसा आपका चला भी गया फिर भी आपको कोई फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए. The next question is from RK Biography, where he is asking ITC किस जन्म में बढ़ेगा. ITC तब बढ़ेगा जब उसके प्रॉफिट में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन ITC के FMCG अदर्स बिजनेस से आएगा तब, एंड इस चीज को आई थिंक और 2 से 3 साल लग सकते हैं. The next question is from Praveen Kanse, where he is asking what is your view on investing in below stock names for more than 5 years. IRCTC, Bajaj Auto, Pidilite, TCS and Asian Paints. All these companies are great. Monopoly in each and every segment they are working on. But the first company, which is IRCTC, I am not very bullish on this particular upfront, because IRCTC में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कल उठ के कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी टिकट बुकिंग सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, तो IRCTC के अर्निंग्स पे बहुत ही ज्यादा बड़ा डेंट आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई वुड स्टे अवे फ्रॉम IRCTC. The next question is from Harshit Singh, where he is asking tell your views
on UTI's Nifty 200 Momentum Mutual Fund. Also love your videos. Thank you so much हर्षित. जो ये पर्टिकुलर मोमेंटम फंड्स रहते हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता हूँ, इनको अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ. बट फॉर यू पर्टिकुलरली दिस फंड को मैंने चेकआउट किया एंड आई फाउंड दैट कि ये पर्टिकुलर फंड बहुत ही ज़्यादा नया है, February 2021 में ही लॉन्च हुआ है. सो आई वुड प्रीफर कि इस फंड को पहले अपने आप को प्रूव करने दो, परफॉर्म करने दो इस फंड को 2-3 सालों के लिए. देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस पर्टिकुलर फंड का. एंड एक बार ये पर्टिकुलर फंड परफॉर्म कर दे देन ओनली आई कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर फंड. सो प्लीज डू वेट फॉर सम टाइम, फॉर सम ईयर्स, जहाँ पे अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है देन ओनली वी कैन कम टू एनी डिसीजन फॉर दिस पर्टिकुलर फंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गौरव पंचोली वेयर ही इज आस्किंग एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वर्सेस पैसिव म्यूचुअल funds for 10 plus years. I think so it depends individual to individual because as always personal finance is personal finance because it is personal. But if you can analyze any particular fund जहाँ पे उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देख के, उस फंड का फंड मैनेजर देख के और उस फंड में जो स्टॉक्स है उनको देख के, इफ यू कैन प्रिडिक्ट कि ये फंड आगे भी अच्छा करेगा और अपनी वेल्थ को अच्छे से कंपाउंड कर सकता है, देन यू कैन गो विथ एक्टिव म्यूचुअल फंड. बट फॉर इफ नॉट यू कैन गो विथ पैसिव म्यूचुअल फंड ऑलवेज बिकॉज इंडेक्स फंड इज ग्रेट फॉर बिगनर्स एंड नो नथिंग इन्वेस्टर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योति Nakama where she is asking which company history inspired your investment decision the most. And there are so many companies जिसकी history मुझे बहुत ही ज़्यादा inspire करती है ज्योति. But if you ask me to choose one only, I would go with Asian Paints. जहाँ पे Asian Paints is the only company on this planet जिसने अपने revenue को approximately 20% के CAGR से almost 6 decades तक grow किया है. Which means almost 60 years तक Asian Paints ने अपने revenue को 20% के CAGR से grow किया है, which is crazy thing to achieve. And now you must be thinking how Asian Paints achieved it. How Asian Paints is the number one paint company in India having 60% of market share in decorative paints and how they are continuously increasing their revenue even though there are so many competitors in this particular sector. And the secret behind it is बाहर से हमें ये लगता है कि Asian Paints is the paint company, full-fledged paint company. But ऐसा नहीं है. जितनी Asian Paints paint company है उतनी ही Asian Paints टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक कंपनी भी है, जहाँ पे एशियन पेंट्स के पास ऑलमोस्ट 7 डेकेड का डेटा है कि अगर इंडिया में पेंट बिक रहा है तो अगर मुंबई में राइट नाउ जो एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे आज के दिन इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा पेंट बिकेगा एंड हाउ दे कैन प्रिडिक्ट इट वेरी प्रिसाइसली. इट इज बाय एनालाइजिंग द डेटा विच दे हैव ऑफ ऑलमोस्ट 7 डेकेड्स, जहाँ पे इंडिया में कौन कहाँ पे कौन सा पेंट बाय कर रहा है उसका सारा डेटा अवेलेबल है उनके पास ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का. एंड उसको एनालाइज करके एशियन पेंट्स कैन प्रिडिक्ट वेरी प्रिसाइसली कि अगर आप जिस सेक्टर में रहते हो, आप जिस गांव या फिर शहर में रहते हो, उस शहर में आज के दिन इतने बजे कौन सा पेंट बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा है. एंड ये पॉसिबल कैसे हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जहाँ पे चंपकलाल चौकसी हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियन पेंट्स, उन्होंने 1974 में सुपर कंप्यूटर बाय किया एशियन पेंट्स के लिए 8 करोड़ रुपीस देके, 8 करोड़ रुपीस को स्पेंड करके. एंड बाय द वे 1970s में इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं था और चंपकलाल चौकसी ने 1970s में एशियन पेंट्स के डेटा को एनालाइज करने के लिए सुपर कंप्यूटर बाय किया कंपनी के लिए. इन दिस विजनरी थिंकिंग मेड एशियन पेंट्स द मार्केट लीडर इन पेंट सेक्टर राइट नाउ, जहाँ पे डेटा किसी के पास नहीं है, ओनली एशियन पेंट्स के पास है. एंड दिस डेटा इज रिफाइनिंग डे बाय डे, जहाँ पे एशियन पेंट्स 60% मार्केट को हर दिन पेंट सेल करता है इंडिया के. एंड दैट इज वाई ये डेटा आते ही रहता है नया और उसको एनालाइज करके एशियन पेंट्स और ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है फ्यूचर में कि इंडिया में इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से पेंट की बिकने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल मोड एनी कंपनी कैन हैव एंड दैट इज व्हाई दिस कंपनी इंस्पायर्स मी द मोस्ट. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुशील यादव. दिस इज रैपिड क्वेश्चन, जहाँ पे द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म SIP या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग. ऑलवेज लॉन्ग टर्म SIP ब्रो. योर फेवरेट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक. द म्यूचुअल फंड इज आई थिंक इंडेक्स फंड इज द बेस्ट एंड स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स में होल्ड करता हूँ वो सारी कंपनीज मेरी फेवरेट है. BSE या NSE, ऑलवेज NSE फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एज वेल एंड फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एज वेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Ashwani Gupta where she is asking how to save taxes in the share market. And there are many ways to save taxes in the share market, but the most effective way of saving taxes in the share market is holding your businesses as long as you can. I mean decades के लिए hold करना चाहिए because by doing this you are deferring your tax for so long period. एंड उसकी वजह से जब आप बहुत सालों के बाद प्रॉफिट में अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो आपका टैक्स डिफर की वजह से बहुत ही ज्यादा टैक्स आपका बच जाता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे. एंड दैट इज व्हाई सेविंग टैक्सेस बाय होल्डिंग योर बिजनेसेस एज लॉन्ग एज यू कैन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सेविंग टैक्सेस इन द शेयर मार्केट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहित रत्नेश वेयर ही इज आस्किंग व्हिच सेक्टर विल बी बुलिश दिस ईयर. आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर बट आई कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर डिकेड, जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर, स्पेशली
स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर एंड जो कंपनीज जो शेयर मार्केट के रिलेटेड सर्विस है उनको जो प्रोवाइड करती है जो सर्विसेज, वो सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है। एंड देयर आर मेनी सेक्टर्स एंड मेनी स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिसके ऊपर डिटेल्ड 2 एपिसोड मैंने बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन दोनों एपिसोड को जरूर चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने 6 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात की है जो आई थिंक मल्टी डेकेडल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ हमारे लिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो प्लीज चेक आउट दीज 2 एपिसोड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्जुन सिंह वेयर ही इज आस्किंग, क्या हम BSE से स्टॉक बाय करके NSE में सेल कर सकते हैं क्या? यस, इट इज पॉसिबल अर्जुन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कृष्णा राज एस शेनॉय वेयर ही इज आस्किंग योर थॉट्स ऑन CAMS at South Indian Bank. I haven't analyzed South Indian Bank, so I can't comment on it anything. But CAMS का फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। जहाँ पे इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स में, दैट परसेंटेज इज़ वेरी लो। तो जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा तो CAMS जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, उनका भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, उनकी भी डिमांड आने वाले फ्यूचर में रहेगी। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक सो CAMS के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ एज वेल एज अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल है। इफ बहुत ज़्यादा पैसिव फंड्स फेमस ना हो इंडिया में एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव फंड में इन्वेस्ट ना करें इंडिया में, तो बिकॉज पैसिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट करने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट पैसिव फंड का हो जाएगा, ना कि एक्टिव फंड का, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनका ही प्रॉफिट कम होने लगेगा। एंड दैट इज़ वाई उनके ही ऊपर डिपेंडेंट है CAMS। सो CAMS का भी प्रॉफिट इनडायरेक्टली कम हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज पर्टिकुलर रिस्क CAMS के साथ है। बट अदर देन दैट आई थिंक सो CAMS इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, जहाँ पे ग्रोथ एज वेल एज अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही अच्छे से क्लियर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो, क्वेश्चन एंड आंसर के एपिसोड अगर आपको पसंद आ रहे हो, अगर आपको चाहिए कि मैं ये सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं, तो मैं आगे भी ये एपिसोड को कंटिन्यू करने का सोचूं। एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑन दैट नोट गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।